हाय गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगी। अच्छा, अपन आज क्या करने वाले हैं। अपन जो है एक तरीके का नया पैटर्न शुरू करेंगे। सो आई विल बी डीलिंग विद सम ऑफ द की कंटेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो व्हाट आई विल बी टेकिंग is that basics of analog communication. In this particular series, I'll be taking only few basic concepts, and those basic concepts will be explained by me in terms of questions and answers। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर चेक करेंगे, और उसी के बीच में आई गिव यू सम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत क्लियर हो जाए। अच्छा, अब एनालॉग कम्युनिकेशन की मैंने बात की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। रिमेंबर, दिस इज़ नॉट लाइक इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक मैं यहाँ पे क्या बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वर्बल कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करें। कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन का क्या पर्पज़ है। सो कम्युनिकेशन is actually a means or mechanism by which you can exchange the information between two points or between multiple points। exchange of information है, ठीक है। so हमारे पास अगर literally हम कहना चाहते हैं कि how would one should speak in an interview or how one should be speaking in terms of giving his or her viva, तो अगर सवाल आता है define communication, तो आपके पास आंसर क्या होगा। communication is a process in which there is an exchange of information। now, second term, what is information। so organized collection of data, organized collection of data is called information। say for example मैं एक बात कहूँ, ram comma goes comma home does not make any sense। it is not giving you any information, it is just giving you raw data। ये सिर्फ आपको इनपुट्स दे रहा है, एक्स वाई एंड जेड। बट अगर मैं क्या लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिखता हूँ, राम गोज़ होम straight away without any comma, last में full stop, now this is a complete information। so communication क्या है, exchange of information है। information क्या है, it is an organized collection of data। now what we are going to do is that we have gone to two questions। number one, what is communication, number two, what is information, and in information we came to know about data also। now number three, uh, what is the need of communication and how many types of communication। तो मैं आपके साथ एक यहाँ पे की इंग्रेडिएंट और बोलना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइप्स और काइंड की, ठीक है ना। व्हाट आर देयर टाइप्स एंड हाउ मेनी काइंड्स आर देयर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की ब्रीफिंग करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में इनमें बहुत डिफरेंस होता है। किसी भी चीज़ का टाइप बताना और किसी भी चीज़ के काइंड बताना, ये बहुत डिफर होती हैं चीज़ें। खैर, मैं इन पे बाद में आता हूँ। अभी हमारे पास सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन। सो imagine the present day scenario। we are living in a digital age where people who wants something, they can access it by a click on their touch screen of their cell phone or their ipad, or on their like system or whatever they are using, their electronic gadget। so communication is necessary because of the information a normal people wants, okay। so for that you need a communication। now communication has its own different types। so number fourth question, how many types of communication exist। there are three different types of communication। number one, simplex communication, number two, half duplex communication, number three, full duplex communication, ठीक है। how many types, three different types of communication, simplex, half duplex and full duplex। so what is simplex communication। आज से 70 साल पहले चले जाइए। क्या, रिमेंबर, जब हम लोग क्या करते थे, बचपन में खेला करते थे। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, आपका बचपन अभी शायद बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होगा, आपको बचपन में ही सेलफोन मिल गए होंगे। हम लोग जब खेला करते थे छुट्टियों में, तो दो डब्बे टीन के या कैन के बनाते थे और उसको एक तार से या एक धागे से बांधते थे, और एक तरफ से एक मुंह लगा करके उसके अंदर बोलता था, दूसरा कान लगा करके सुनता था, तो उसे सुनाई देता था थोड़ी दूरी पे। दिस इज़ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक आदमी बोल सकता है, दूसरा आदमी सुन सकता है। ऐसी प्रणाली या ऐसी टेक्नोलॉजी, प्रणाली एक्चुअली क्या है, टेक्नोलॉजी का हिंदी अनुवाद।
प्रौद्योगिकी को भी कहते हैं। खैर, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड हो गई है बिकॉज़ इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अब बहुत कम है। यहाँ पे एक सेंडर ए है, एक रिसीवर बी है। सेंडर रिसीवर को कुछ भी भेज सकता है। रिसीवर ए को कभी कुछ नहीं बता सकता कि उसे वो मिल गया है या नहीं मिला है, ना ही वो रीट्रांसमिट कर सकता है। सो देयर इज़ what do you call that, a backlog to this particular technology. अब इस तरीके की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है कि ए बी को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, बी कहेगा हाँ जी मिल गई, या फिर बी जब उसे रिसीव कर लेगा तब बी ए को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी आज भी यूज़ हो रही है एविएशन सेक्टर में कहीं कहीं पे, और हमारे रेलवे सेक्शंस में। कहाँ पे आपने देखा होगा, वॉकी टॉकी का यूज़ देखा होगा। सिक्योरिटी पर्सनल्स इसको यूज़ करते हैं। रिमेंबर हम क्या करते हैं, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब आप बोलिए डॉट, या कोई एक सिंबल होता है जिसके थ्रू वो अपनी इन्फॉर्मेशन को हॉल्ट करते हैं, रोकते हैं, तब दूसरा बंदा बोलता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, दो चैनल, एक नया टर्म यूज़ हो रहा है चैनल, जिसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चैनल, तो एक चैनल पे ए से बी इन्फॉर्मेशन जा रही है, फिर दूसरे चैनल पे बी से ए इन्फॉर्मेशन आएगी, वो स्विच करते हैं अपने अपने हैंडसेट के थ्रू। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ये होता है हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग चैनल होते हैं, एक चैनल पे एक साइड से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, फिर दूसरे चैनल पे स्विच करेंगे, वहाँ से पहले वाले सेंडर पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। अब आते हैं मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी पे, जिस पे आप अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितनी भी आप मतलब मॉडर्न डे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। इसमें इंस्टेंट एक ही चैनल पे साइमल्टेनियसली आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक ही चैनल। दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मीडियम इज़ एज गुड एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न एज। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: simplex, half duplex and full duplex, and we have gone through all these communication types also. Now um, one more question which we can go ahead in this video is, what do we understand by modulation? ओके, तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि जब मैं यहाँ बैठ करके अगर सेलफोन से बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ दिल्ली पहुँच सकती है, या सैन फ्रांसिस्को पहुँच सकती है, या ऑकलैंड पहुँच सकती है, या बर्मिंघम पहुँच सकती है। बट अगर मैं यहाँ से चिल्ला दूँ बिना सेलफोन के, तो मेरी आवाज़ मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं पहुँचेगी। रीज़न क्या है इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है वो किलोहर्ट्ज़ में होती है, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वो वेवलेंथ आसपास के पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करती है, टकराती है उनसे, और हमारे वॉइस का एम्पलीट्यूड गिरना शुरू हो जाता है। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सारी की सारी जो वॉइस की एम्पलीट्यूड होती है वो डिमिनिश हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो वो आगे नहीं पहुंच सकती। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी वॉइस की वेवलेंथ को कम करना होगा और फ्रीक्वेंसी को उठाना होगा। क्यों? ताकि जब भी वो आसपास के इन्वायरमेंट को टच करे तो वो उसको ट्रेसपास कर जाए, उसमें एम्पलीट्यूड को गिराती ना जाए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मॉड्यूलेशन करता है। अब इसका दूसरा तरीका समझने का एक ये है, मेरे को यहाँ से कहना है कि सपोज़ मैं कानपुर में रह रहा हूँ और मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। ठीक है, तो कहेगा, लोग कहेंगे कि कानपुर ट्रेन में बैठ के चले जाओ। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि तुम पैदल चले जाओ। अब पैदल जाना क्या सही तरीका है? अगर आपको 2000 किलोमीटर जाना है तो क्या आप पैदल जाना चाहेंगे? पहली बात है, आप कहेंगे नहीं। लेकिन वही चीज़ आप वॉइस के साथ क्यों करना चाह रहे हो? वॉइस को भी पैदल मत भेजो ना, वॉइस को भी कोई मीडियम दो। ठीक है, क्योंकि उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वो जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हम कहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं? हम इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मैकेनिज़्म है जिसको मॉड्यूलेशन कह रहे हैं। तो मॉड्यूलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इस लिमिटेशन से बनी। ठीक है, वाई वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन और वाई वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड मॉड्यूलेशन इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज जो ह्यूमन वॉइस फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लोअर लेवल पे होती है, इन टर्म्स ऑफ किलोहर्ट्ज़ होती है।
और वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते. So on this note, I'll take the leave, and we'll see with a new video with term called modulation. Thank you guys.